Okay, so Charles' law. Charles' law express a relation between your volume and temperature. Okay, where pressure is kept constant. हम लोग का बॉयल्स लॉ में क्या हो रहा था, हमने देखा था रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो अल्टीमेटली तीन ही फैक्टर होते हैं, pressure, volume and temperature. Now this time Yes, sir. volume is related to temperature. How? When pressure is kept constant. Now before explaining this, take an example. जैसे मैं एनिमेशन तुम लोगों को शो कर रहा था, यहाँ पे सर एक सॉलिड को हीट करेंगे सर, आइस को हीट करेंगे. एग्जैक्टली. सो इफ मॉलिक्यूल्स आर, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया सपोज करो मैंने गैस को, तो क्या वो लिक्विफाइड हो गया, लिक्विफाइड हो गया. और अगर फर्दर मैं यहाँ पे हीट अप्लाई करूँ, मैं टेम्परेचर इसका इंक्रीज करूँ, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगा. एंड दिस मॉलिक्यूल्स गो हेयर एंड देयर, start colliding to each other, colliding with wall of the container, and as a result their volume will increase. So volume is directly proportional to temperature if we keep the pressure constant. Am I clear? But this temperature is not Yes, ordinary temperature of degree Celsius. This temperature is a temperature of absolute scale of temperature, which is called Kelvin scale. So ये definition जब भी लिखो तो आप उसके साथ साथ ये mention करोगे. At constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas, look, mass of gas is also fixed, is directly proportional to absolute temperature. मैंने क्यों बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? बिकॉज चार्ल्स लॉ से पहले केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर था ही नहीं. उससे पहले हम लोग डिग्री सेल्सियस को पता था, फ़ारेनहाइट पता था. ये कैसे आया, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे. ये एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहाँ से आया. बट जस्ट फिलहाल sake of knowledge, just remember V is proportional to T when P is constant and mass of gas is also constant. सो सिमिलरली अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा ना. तो कांस्टेंट आएगा. तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ v by t is constant, and if v by t is constant, Yes, sir. so if volume is v1 at temperature t1, then volume will be v2 at temperature t2. Similarly, Yes, volume sir. at 3t at temperature t3, and so on, and everything is equal and constant. Sir, Vn is equal by Tn. Yes, V1 by T1 is equal to V2 by T2. This expression is very, very important for your numerical point of view. Okay. Yeah. Okay. So next जो मैं अभी तुम लोग को बोल रहा था, the degree Celsius relation, because Charles law का जो actual definition है, actual definition of Charles law is basically from degree Celsius scale. So this definition is more important than the previous one, because previous one is the output of Charles law. But पहले हम लोग को ये पढ़ना चाहिए, फिर मैं वहां पे आता हूँ. मैंने जानबूझ के रिवर्स पढ़ाया. This will help you. Now, what is the actual law? इसको रटना नहीं है, इसको देखो अपने आप याद कर लोगे तुम लोग, अपने आप याद कर लोगे. कैसे? Actual Charles law says that if we increase the temperature of a gas, suppose this is a gas, if we increase the temperature of a gas by 1 degree Celsius, मान लो ये गैस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस वक्त इसका वॉल्यूम जो था वो था V0. So V0 is what? V0 is volume of the gas at 0 degree Celsius. If we increase the temperature of the gas to 1 degree Celsius, then its volume will increase by 1 by 273 times
of the initial volume. Am I clear? Or should I repeat? Yes, sir. Clear. If the gas volume, मान लो गैस का वॉल्यूम था 1 लीटर, 1 लीटर था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जैसे ही मैं 1 डिग्री बढ़ाऊंगा तो उसमें कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा? 1/273 टाइम्स ऑफ 1 लीटर. सिमिलरली अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री घटा दो, -1 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो -1/273 of gas. इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, 2 डिग्री बढ़ाओगे तो 2/273 इंक्रीज होगा, 3 डिग्री बढ़ाओगे तो 3/273 डिग्री इंक्रीज होगा. तो अगर टी डिग्री बढ़ाओगे तो मैं बोल सकता हूँ टी डिग्री 1/273 इंटू टी डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा. यस और नो? सो दिस विल बी योर सर अगर एक्सप्रेशन. 273 डिग्री बढ़ा देंगे तो फिर तो वो गैस का स्पेशल वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा ना. वो स्पेशल केस है, हम लोग आ रहे हैं. तो यहाँ देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर for each degree rise in temperature, for each degree rise in temperature, volume of gas increase by 1/273 times of the original volume of the gas at 0 डिग्री सेल्सियस. रटना बिल्कुल नहीं है, जो मैंने ये बताया समझाया इसी को लिखा हुआ है. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? डिक्रीज कर दो 1 डिग्री. At constant pressure, each degree decrease in temperature, volume of gas decrease by 1/273 times. Is it okay or not? जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एग्जाम्पल, इसमें पुट करो when t डिग्री सेल्सियस इज +1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे v t के जगह हो जाएगा v 1 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा v0 प्लस 1/273 इंटू 1. और यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ v0 होगा. ओके, 1/273 इंटू v0. ओके, अब जैसे तुम बोल रहे थे, सपोज करो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मुझे दीपक बोल रहा था कि अगर मैं इसे 273 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा खुद बताओ, एनीवन? सर दुगना हो जाएगा वॉल्यूम. Yes, sir. v0 into 273/273, so this will be twice the initial volume at 0 degree. ओके, सिमिलरली अब इसका वैल्यू वॉल्यूम जो है डिक्रीज करो. नाउ सपोज T degree Celsius is -273 degrees. So it is V -273. This will be how much?